حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ پاک کا یہ اعلان ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بہت سی قرآنی آیتوں میں اللہ پاک نے عیسائیوں کے اس دعوے کو جھٹلایا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بہن کا نام حنا تھا۔ ان کا نکاح عمران سے ہوا تھا، جو کہ بنی اسرائیل کے بزرگ تھے۔ بہت سالوں تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ہر بار جب بھی حنا کسی ماں کے بچے کو کھلاتے ہوئے دیکھتی تو ان کا دل اداس ہو جاتا، مگر انہوں نے امید نہیں چھوڑی اور ہمیشہ دعا کرتی رہی کہ اللہ انہیں ایک اولاد عطا کرے۔ انہوں نے منت مانگی کہ اگر بچہ ہوا تو وہ اسے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کری۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہیں تو وہ خوشی سے رو پڑی، مگر ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا جب وہ پریگننٹ تھی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ ایک لڑکی تھی۔ حنا نے پھر دعا کی، میرے رب، میں نے ایک لڑکی پیدا کی ہے اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کے لیے اور اس کی نسل کے لیے شیطان سے پناہ مانگتی ہوں۔ لیکن جس حساب سے حنا نے اللہ سے وعدہ کرا تھا کہ وہ بچے کو اللہ کی خدمت کے لیے وقف کریں گی، لیکن حنا کو ایک مشکل کا سامنا تھا کہ لڑکیوں کو بیت المقدس میں نہیں رکھا جاتا۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام، جو حنا کے بہنوئی یعنی کہ جیجا تھے، انہوں نے کہا میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں اور اس کی بہتر دیکھ بھال کر سکتا ہوں۔ لیکن دوسرے بزرگ بھی حضرت مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کرنا چاہتے تھے، اور پھر ان سب نے ایک مشورہ کرا کہ لال لکڑی دریا یعنی کہ ندی میں پھینکیں، جس کی لکڑی تیرتی رہے گی وہی گارڈین بنے گا۔ سب کی لکڑیاں ڈوب گئیں، صرف حضرت زکریا علیہ السلام کی لکڑی تیرتی رہی۔ اس نشانی کے ذریعے اللہ پاک نے انہیں حضرت مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے چنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک الگ کمرہ تیار کروایا تاکہ کوئی بھی ان کے پاس نہ جا سکے۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں کھوئی ہوئی رہتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام روز ان کی خبر لینے کے لیے آتے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس موسم سے ہٹ کر تازہ پھل رکھے ہیں۔ جب پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اس پر حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کو اور عورتوں سے الگ بنایا ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ اور زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا، ان کو علم اور ہدایت دینے لگے۔ حضرت علی ابن طالب سے روایت ہے کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، دنیا کی عورتوں میں سب سے بہترین حضرت مریم علیہ السلام ہے اور ان کے وقت میں حضرت خدیجہ ہیں۔ ایک دن جب حضرت مریم علیہ السلام عبادت کر رہی تھی تو ایک مرد کی شکل میں فرشتہ یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ڈر کے مارے دعا کری، میں رحمان اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے۔ فرشتے نے جواب دیا، میں صرف تیرے رب کا پیغمبر ہوں، تجھے ایک پاک بیٹا دینا آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حیران ہو کے کہا، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا جب مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار بھی نہیں۔ فرشتے نے کہا، یہ تیرے رب کے لیے آسان ہے، ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنانا چاہتے ہیں، یہ تو ایک فیصلہ کری ہوئی بات ہے۔ فرشتے کی اس بات کو سن کے حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئیں۔ مہینے گزر گئے اور جب وہ پریگننٹ ہو گئیں تو ان کا غم اور بھی بڑھ گیا۔ انہیں بہت سے لوگوں کے طعنوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ نازریت چلی گئیں اپنے وطن کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اور وہاں تنہا رہنے لگی۔ کہا جاتا ہے نجر یوسف کو جب اس بات کا پتہ لگا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا، کیا کوئی درخت بنا بیج کے اگ سکتا ہے؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، وہ جو اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو۔ پھر اس نے پوچھا، کیا بنا مرد کے کسی عورت کے لیے بچہ پیدا کرنا ممکن ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، ہاں، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا مرد
और औरत के पैदा किया था। एक और रिवायत के मुताबिक जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम प्रेग्नेंट थी तो एक दिन वो अपनी खाला के पास गई। उनकी खाला ने महसूस किया कि वो भी प्रेग्नेंट है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा उन्हें भी ऐसा लगता है। तब उनकी खाला ने कहा मैं महसूस करती हूँ कि जो मेरे पेट में है वो उस चीज को सजदा कर रहा है जो तुम्हारे पेट में है। वक्त गुजरने के बाद जब दर्द शुरू हुआ तो वो एक सूखे खजूर के पेड़ के नीचे जा बैठी। दर्द में उन्होंने कहा काश मैं इससे पहले मर गई होती और लोगों के जहन से मिट गई होती। उस वक्त उन्हें आवाज आई गम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा यानी कि पानी का एक फुवारा पैदा किया है और इस खजूर के पेड़ को हिलाओ तो तुम पर ताजे खजूर गिरेंगे, खाओ पियो और तसल्ली रखो। शायद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को ये बात पता ही नहीं थी कि जो इस दुनिया में आने वाला है वो आज तक की सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन उन्हें फॉलो करने वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम शहर वापस आई तो लोग हैरान हो गए। उन्होंने इल्जाम लगाया ऐ मरियम तुमने तो अजीब काम कर दिखाया, तुम्हारा बाप कोई बेकार आदमी नहीं था और ना ही तुम्हारी माँ बुरी थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने हैरानी से पूछा हम इस बच्चे से कैसे बात कर सकते हैं? तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। मैं जहाँ कहीं भी रहूं उसने मुझे बरकत वाला बनाया और नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा रहूं। उसने मुझे मेरी माँ का फर्मा बरदार बनाया है और मुझे घमंडी और बदनसीब नहीं बनाया। सलाम हो मुझ पर जब मैं पैदा हुआ और जब मैं मरूंगा और जब मुझे जिंदा उठाया जाएगा। यहूदी उलमाओं को लगा ये बच्चा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है उनके लिए खतरा बन गए हैं। उन्हें डर था कि लोग कहीं अल्लाह ताला की इबादत न करने लगे और उनका पुराना दिन कहीं छोड़ ना दें, इससे उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बचपन में बोलने के मोजज़े को छुपा कर रखा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे थे तो नबूवत का असर उन पर जाहिर होने लगा था। वो अपने दोस्तों को बिना देखे बता देते कि उनके घर पर क्या बना है और उन्होंने क्या छुपा रखा है और कहाँ छुपा रखा है। 12 साल की उम्र में वो अपनी माँ मरियम के साथ बैतुल मुकद्दस यानी कि जेरूसलम गए। वहाँ एक मंदिर में उलमाओं की यानी कि यहूदी उलमाओं की स्पीच सुन रहे थे। वहाँ बहुत से लोग उम्र में बड़े थे लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिना डरे हुए उनके बीच में बैठकर उनसे सवाल करने लगे। उलमा इतना हैरान रह गए और उनके सवालात का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चुप करने की कोशिश करी लेकिन वो अपनी राय देते रहे। उनकी माँ ये समझ रही थी कि वो किसी रिश्तेदार के साथ वापस आ गए होंगे, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि वो वहाँ नहीं है। फिर वो वापस शहर गई और देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उलमाओं के बीच बिजी हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने गुस्सा दिखाया कि तुमने मुझे परेशान किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी कि बहस में वक्त का पता नहीं चलता। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, ये सैटरडे का दिन था यानी कि सब्बात का दिन, जिसमें हर काम रोक दिया जाता है, जैसे कि आग जलाना, बुझाना, यहाँ तक कि औरत की चोटी बांधना तक मना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात का हुक्म दिया था कि ये दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए हो। वैसे कुछ लोग मानते हैं कि ये सैटरडे ना होकर संडे का दिन था। यहूदी उलमा समझते थे कि ये दिन जन्नत में भी मनाया जाता है और इस दिन के हकदार सिर्फ वो खुद होंगे। फिर भी वो इस दिन के कानून को अपने फायदे के लिए तोड़ मोड़ करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक भूखे बच्चे को फल दिया और एक बूढ़ी औरत के लिए आग भी जलाई। ये दोनों काम इस दिन के कानून के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि मंदिर में 20,000 यहूदी पादरी हैं जो इस दिन से अपना घर और खर्चा चला रहे हैं। उनका ध्यान सिर्फ माल और दौलत पर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि मंदिर में सिर्फ 2
दौलतमंद लोग ही जानवर लेकर आ रहे हैं कुर्बानी के लिए, जबकि गरीब लोगों को धक्के दिए जा रहे हैं। मंदिर पूरा बाजार बन चुका था। इसी रात हजरत याया और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को हुकूमत ने शहीद कर दिया था। उसी रात अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की और हुक्म दिया कि अब तुम बनी इजराइल को दावत दो। आराम की जिंदगी खत्म, अब इबादत और जिहाद का रास्ता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम फारसियों के रस्मों और रिवाजों के खिलाफ था। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को दोबारा सीखने आए थे, ना कि उसे मिटाने के लिए। उस दौर के लोग माल और दौलत के पुजारी बन चुके थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को असलियत की तरफ दावत दी, उन्हें बुलाया। उनका पैगाम सिर्फ कानूनी तौर पर नहीं था, बल्कि पूरे दिल की सफाई के तौर पर भी था। उन्होंने कहा वो यहूदियों की पाक किताब को मिटाने नहीं आए हैं, बल्कि उसके असली पॉइंट तक समझाने आए हैं। जैसे कि 5वां हुक्म सिर्फ कत्ल को नहीं रोकता, बल्कि हर किस्म के जुल्म, जिस्मानी, रूहानी या नफ्सी जुल्म को भी रोकता है। 6वां हुक्म जिना यानी कि रेप को नहीं रोकता, बल्कि हर वो नजर, इरादा या उस काम को भी रोकता है जो तुम्हें जिना के करीब ले जाए। तुम्हारी आंखें भी जिना करती हैं जब वो किसी को सोवत भरी नजरों से देखती हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दौलत को पसंद करने वाले लोगों का मुकाबला किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि दिखावा और झूठी तारीफ से बाज आ जाओ। इस दुनिया का माल और दौलत इकट्ठा करना बेकार है। लोगों को चाहिए कि इस दुनिया की बजाय आने वाली आखिरत पर काम करें, क्योंकि वही हमेशा रहने वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा दुनिया से मोहब्बत करना एक गुनाह है जो कि अल्लाह के नेक बंदों के लिए मुनासिब नहीं। जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं वो जानते हैं कि इनका रिज़्क अल्लाह के पास है, इसीलिए वो दुनिया की चिंता नहीं करते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से यहूदी पादरी गुस्से में आ गए, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हर लफ्ज उनके लिए खतरा था और उनकी बुराइयां बेनकाब करता था। रोमन एम्पायर के राजा स्टार्टिंग में तो इस मैटर के बीच में नहीं आए, क्योंकि वो इनका पर्सनल मैटर था, लेकिन यहूदी उलमाओं ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक साजिश रची। उन्होंने एक जानी औरत को लेकर पहुंचे। जानी मतलब वो औरत जिसने अपने पति के अलावा किसी और के साथ भी रिलेशन बनाया हो। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा क्या मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक ऐसी औरत को पत्थर मार मार कर नहीं मार देना चाहिए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ ऐसा ही करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये औरत जानी है और इस औरत ने अपने पति के अलावा किसी और मर्द के साथ भी रिलेशन बनाए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने औरत और पादरियों की तरफ देखा, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पता था कि इस औरत से भी ज्यादा ये लोग खुद गुनहगार हैं। तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुम में से बेगुनाह है वो पहले पत्थर मारे। ये सुनकर सब खामोश हो गए, क्योंकि कोई भी बेगुनाह नहीं था। ये उन लोगों के लिए सबक था कि सिर्फ अल्लाह ही गुनाह का फैसला कर सकता है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद से निकले तो वो औरत उनके पीछे पीछे चली। उसने अपने कपड़ों से एक इत्र की शीशी निकाली, ईसा अलैहिस्सलाम के पांव धोए और आंसुओं से भी पांव धोए और अपने बालों से उन्हें पोंछा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उठो और ए रब इसके गुनाह माफ कर दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे कि अल्लाह उनकी कौम पर रहम करे और उन्हें एक दूसरे पर भी रहम करना सिखाए। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से कई मिरेकल्स यानी कि अजूबे किए। तफसीर में आता है कि उन्होंने 4 लोगों को जिंदा किया, एक उनका दोस्त अल अजाम, एक बूढ़ी औरत का बेटा और एक औरत की अकेली बेटी। यहूदियों ने कहा ये सिर्फ उनको जिंदा करता है जो हाल ही में मरे हों, हमें क्या पता ये बेहोश हों। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम जिंदा ही कर सकते हो तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे सैम को जिंदा करके दिखाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्र दिखाने को कहा। दुआ के बाद सैम जिंदा हुआ, लेकिन बालों में सफेदी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारे वक्त में तो बुढ़ापा नहीं था, तो ये सफेद बाल कैसे? सैम ने जवाब दिया मैं समझा कि कयामत आ गई है, इस डर की वजह से मेरे बाल सफेद हो गए। लेकिन उसके बाद भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि पादरियों के अंदर उनके खिलाफ नफरत है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है जो अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार बनेगा? उनके साथियों ने कहा हम अल्लाह के मददगार हैं, अल्लाह पर
ईमान ला चुके हैं और गवाह रहो कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहूदी उलमा चालाकी करते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और उनको रूहानी कानून बताते रहे। जब वो पहाड़ों पर अपने साथियों के साथ थे तो देखा कि जो लोग उन पर ईमान लाए हैं वो गरीब और मजलूम लोग हैं और उनकी तादाद भी कम थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कुछ मौजूदात यानी कि मिरेकल अपने साथियों के कहने पर किए थे, जैसे उनका आसमानी दस्तरखान मांगना। इसी हवाले से अल्लाह पाक ने फरमाया, और याद करो जब साथियों ने कहा, ऐ ईसा मरियम के बेटे, क्या आपका रब हमारे लिए आसमान से एक दस्तरखान भेज सकता है? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरो। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि उसे खाएं और हमारा ईमान मजीद मजबूत हो और हम जाने कि आपने जो हमें कहा वो सच है और हम खुद उसके गवाह बन सकें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह हमारे रब, हमें आसमान से एक दस्तरखान भेज दे जो हमारे लिए, पहले वाले और बाद वालों के लिए एक ईद हो और तेरी तरफ से एक निशानी हो, और हमें रिज़्क दे क्योंकि तू सबसे बेहतरीन राज़िक है। अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं इसे तुम्हारे लिए भेजने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम में से कोई इसके बाद कुफ्र करेगा तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो दुनिया में इससे पहले किसी को न दी गई हो। कहा जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को 30 दिन का रोजा रखने को कहा। जब रोजे पूरे हुए तो उन्होंने अल्लाह से आसमानी खाना मांगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की उस वक्त जब उनके साथियों ने अल्लाह पर शक किया। तब एक बड़ा दस्तरखान दो बादलों के दरमियान आया, एक ऊपर और एक नीचे, सबने देखा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ रब इसे हमारे लिए रहमत बना, अजाब का सबब ना बना। और फिर वो दस्तरखान उनके सामने गिरा, वो एक कपड़े से ढका हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सजदे में चले गए और उनके साथी भी उन्हें देखकर सजदे में चले गए। उन्होंने एक ऐसी खुशबू महसूस की जो इससे पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो सबसे परहेजगार है वो इस दस्तरखान को खोले। उनके साथियों ने कहा, ऐ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आप सबसे ज्यादा हकदार हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वजू किया, नमाज पढ़ी और फिर उस दस्तरखान को हटाया। उसमें एक भुनी हुई मछली थी। उनके साथियों ने पूछा, क्या ये दुनिया का खाना है या जन्नत का? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या अल्लाह ने तुम्हें मना नहीं किया कि सवाल ना पूछो? ये अल्लाह की कुदरत है। उसने कहा, हो जा, और वो हो गया। ये कहा जाता है कि हजारों लोगों ने उसमें से खाया, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं हुआ। ये दस्तरखान वाला दिन उन साथियों के लिए एक मुकद्दस दिन बन गया था, लेकिन बाद में लोगों ने उस मौजज़े का असल मकसद भुला दिया था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करने लगे। अल्लाह पाक ने फरमाया, और याद करो कयामत के दिन जब अल्लाह फरमाएगा, ऐ ईसा मरियम के बेटे, क्या तुमने लोगों से कहा कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा दो खुदा मानो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मुझे ये कहना लायक ही नहीं था। अगर मैं ऐसा कहता तो आपको जरूर पता होता। आप जानते हो जो मेरे दिल में है, लेकिन मैं नहीं जानता जो आपके दिल में है। मैंने उनसे सिर्फ वही कहा जो आपने मुझे हुक्म दिया, अल्लाह की इबादत करो, मेरे रब और आपके रब की। जब तक मैं उनके दरमियान था मैं उन पर गवाह था। अगर आप उन्हें सजा दो तो वो आपके बंदे हैं, और अगर आप उन्हें माफ कर देते हो तो वो आप ही की जात है जो जबरदस्त है। अल्लाह पाक कहेंगे, आज सच्चे लोगों को उनके सच का फायदा होगा। उनके लिए जन्नत है जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे और अल्लाह उनसे राजी है। लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने पैगाम पर काम करते रहे, लेकिन यहूदियों ने उन पर जादू का, तौरात के कानून तोड़ने का और शैतान से दोस्ती करने का इल्जाम लगाया। वो भी जब उन्होंने देखा कि गरीब लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो कर रहे हैं। फिर उन्होंने साजिश करना शुरू किया। सनहेद्रिन, जो कि यहूदियों की सबसे बड़ी अदालत थी और धार्मिक काउंसिल की जगह थी, जब वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम नहीं रोक सके, फिर उन्होंने एक साजिश रची। तो उन्होंने उन्हें कत्ल करने का प्लान बनाया। उस वक्त के चीफ पादरी ने सीक्रेट मीटिंग करी। जब वो मिल रहे थे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 साथियों में से एक यहूदा इस्कारियोती उनके पास गया और कहने लगा, अगर मैं ईसा को तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे क्या दोगे?
उन्होंने उसे 30 सिक्के दिए। इस तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने और मारने की साजिश तय की गई। उस वक्त के यहूदी पादरियों के पास किसी को मौत की सजा देने का हक नहीं था, इसलिए उन्होंने रोमन एम्पायर के गवर्नर को ये कहकर मनाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रोमन सल्तनत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। गवर्नर ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मैथ्यू की किताब के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया गया और पादरी के चीफ ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। फिर उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, उन पर थूका और उन्हें मारा भी। रोमन रस्म के मुताबिक किसी को मारने से पहले उसे कोड़े मारे जाते हैं। रोमन गवर्नर ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कोड़े मारने का हुक्म दिया। तौरात के मुताबिक सिर्फ 40 कोड़े मारे जाते थे, लेकिन रोमन के पास कोई लिमिट नहीं थी और उनके कोड़े बहुत सख्त थे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी के लिए सोल्जर को दिया गया। उनके कपड़े उतार लिए गए और उनकी बेइज्जती करने के लिए उनके सर पर कांटों का एक ताज रख दिया गया। रस्म के मुताबिक उनसे कहा गया कि वो अपनी फांसी की सलेब को खुद उठाएं। बाइबल के मुताबिक आखिर में वो एक जगह पहुंचे जिसका नाम गुलगुथा था। इसका मतलब है खूपियों की जगह, जो कि जेरूसलम के बाहर थी। वहां उन्हें शरबत या वाइन की जगह सिरका दिया गया, जिसमें दाल मिलाया गया यानी कि कड़वा रस, ताकि उनका दर्द बढ़ जाए, और फिर उन्हें सलेब पर चढ़ाया गया। लेकिन ये तो बाइबल के अकॉर्डिंग था। व्हाट अबाउट द कुरान पाक? कुरान पाक के मुताबिक बनी इजराइल ने ना तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और ना ही सूली पे चढ़ाया गया। अल्लाह पाक ने उनको उनके दुश्मन से बचा लिया और उन्हें जिंदा अपनी तरफ उठा लिया, बल्कि उनके सामने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल किसी और पर डाल दी गई। और जो लोग इस बात पर शक कर रहे हैं उनको यकीन हासिल नहीं है, वो सिर्फ गुमान की पैरवी कर रहे हैं। यकीनी बात यह है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। कहो ए मोहम्मद, वो अल्लाह है, एक है, हर जरूरतमंद उसकी तरफ रुजू करता है और वो किसी का मोहताज नहीं है। ना उसका कोई बेटा है और ना वो किसी का बेटा है, और उसका कोई हमसफर या बराबर का नहीं है। सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ लें, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।